Hello students, this is the third lecture on topic structure of atoms and nuclei. In this lecture, let us discuss about the origin of spectral line and some features of hydrogen atom spectrum. In last lecture, we derived the total energy of electron in nth circular orbit. और वो एनर्जी था -me⁻⁴ upon 8 epsilon 0 square n square h square. अभी हाइड्रोजन एटम ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट. इसका क्वांटम नंबर है n is equal to 1. So if we substitute n is equal to 1 here, remaining values are constant. Substitute and simplify. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट मिलेगा -21.68 10⁻⁻19 जूल. This is the electron energy in hydrogen atom when atomic number is 1 and quantum number is also 1. Since this energy value is very small, 10⁻⁻19 joule के order में है, so such a small values are always expressed and discussed in electron total. तो इस नंबर को 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा इट इज इन इलेक्ट्रॉन. So this is the energy of electron in first orbit of hydrogen atom यानी ग्राउंड स्टेट में. और सेकंड थिंग हम लोगों ने यहाँ से कंक्लूड किया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्वांटम. अभी ये डिस्कस करते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे ओरिजिनेट होते हैं. स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब मैथमेटिकली कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. कैसे देखें मैं यहाँ से पढ़ता हूँ. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है थर्ड पोस्टुलेट में. वापस यहाँ से पढ़ते हैं. सिंपल है. हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन. इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर 1 without radiating the energy. So this orbit is called ground state of electron. If electron absorbs the energy by any means, कोई भी heat, light, electric field की वजह से कोई reason हो सकता है. If electron absorbs the energy by any means, then it jumps from inner energy orbit to outer energy orbit. This orbit is called as what? Excited state of electron. So जिस outer orbit में वो गया, that orbit is not allotted to it to revolve. So orbit is what? Excited state for that electron. The excited state of atom is unstable, obviously. And electron remains in excited state about 10⁻⁻8 seconds. And it returns immediately to a ground state. तो आउटर ऑर्बिट से वो अपने रेगुलर ऑर्बिट में आएगा, बट व्हाइल कमिंग टू रेगुलर ऑर्बिट इट मे टेक सिंगल अटेम्प्ट और इट मे टेक मेनी अटेम्प्ट्स टू कम डाउन. जैसे सिंपल एग्जांपल में बोलूं, मानो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट में गया, तो पहला ऑर्बिट उसका ग्राउंड स्टेट हो गया, पांचवा ऑर्बिट उसका एक्साइटेड स्टेट हो गया. तो इन फिफ्थ ऑर्बिट इट मे रिमेन फॉर अ टाइम 10⁻⁻8 सेकंड और लेस देन दैट. तो वापस वो फिफ्थ ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा. लेकिन फिफ्थ से पहले ऑर्बिट में आने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो एक ही अटेम्प्ट में आ जाएगा, मतलब पांचवे में से डायरेक्टली फर्स्ट में ऐसे आना जरूरी नहीं है. इट मे कम लाइक दिस फ्रॉम फिफ्थ टू फोर्थ, फोर्थ टू थर्ड, थर्ड टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, या फिफ्थ टू थर्ड, थर्ड टू फर्स्ट. Precisely, it may take single attempt or it may take many attempts to come from excited state to its ground state. तो जितने ट्रांजिशन वो इलेक्ट्रॉन करेगा, each transition of electron is from outer orbit to inner orbit. So according to third postulate, each transition of electron from outer orbit to inner orbit radiates the energy. That energy is in the form of photon. That energy is the energy difference of outer orbit and inner orbit. And that energy
is in the form of photon. It possesses characteristic frequency or characteristic wavelength. If that radiation is passed through the prism and observed on the screen or through microscope, तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक कलर लाइन मिलेगा. उस कलर लाइन का अपना फ्रीक्वेंसी होगा, अपना वेवलेंथ होगा. That is called as what? Spectral line. So this is how spectral lines are what? Emitted. अभी मैं सेम यहाँ से पढ़ता हूँ. The excited state of atom is unstable and electron remains in excited state about 10 raised to minus 8 seconds. It returns immediately to the ground state by making single attempt or many attempt, as we explained. जो हम लोगों ने डिस्कस किया. Transition of electron from outer orbit to inner orbit radiates the energy of characteristic wavelength and frequency. उसी को हम लोग spectral line बोलते हैं. Because it is observed on the screen in the form of colored line. उसको spectral line बोलेंगे. वो emission spectrum होता है actually. Energy emitted in the form of photon. The energy of photon is equal to the difference between the energy levels of corresponding two orbits, यानी outer and inner. This is how spectral lines are what? Originated. अभी same part हम लोग mathematically देखते हैं. Let EI be the energy of electron in an orbit of quantum number. I be the energy of electron in an orbit for which principal quantum number is Ni. And EF is the energy of electron in an orbit of quantum number NF. Ni is greater than NF. So transition of electron of quantum number Ni to NF gives you energy difference, जो रहेगा h nu. So h nu is equal to EI minus EF. EI का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और EF का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट. कुछ नहीं, दोनों फॉर्मूले सेम रहेंगे. यहाँ क्वांटम रहेगा Ni और यहाँ क्वांटम रहेगा NF. माइनस ME raised to 4, सॉरी ME raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन ले लो. ब्रैकेट में बचेगा माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर. ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस NF स्क्वायर. ये हो गया h nu. Now, right? So nu is replaced by c upon lambda. So hc upon lambda is equal to a constant 1 upon NF square minus 1 upon Ni square. If you observe, this bracket value is constant. ये जो bracket value है ये constant है. और 1 upon lambda is reciprocal of wavelength. It is called as the wave number. ये value constant है. इस constant value को बोला जाता है Rydberg constant. ये देखो सब equations वही है, same. ये value पूरा constant है. अगर आप ये calculate करोगे तो इसका calculated value आता है 1.097 10 power 7. आगे लिखा होगा ये उसका वैल्यू है. इट इज कॉल्ड एज द रेडबर्ग कांस्टेंट. तो इसकी जगह कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यू यार. ठीक है. तो ये आप 1 अपॉन लैम्बडा भी रीड कर सकते हो या रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा वेव नंबर भी रीड कर सकते हो. ये कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट को लेट कैपिटल आर से रिप्लेस किया गया. इसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है. तो ये आर आ गया. Right? So this is the formula. Using this formula, you can calculate or find the characteristic wavelength of spectral line. इस formula से आप wavelength of spectral line find out कर सकते हैं, क्योंकि R constant है. If you know transition of electron from outer orbit to inner orbit, मतलब जैसे for example इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ सेकंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में. इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ सेकंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में. तो Ni को 2 ले लो, NF को 1 ले लो, R का वैल्यू फिक्स है. सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, दैट गिव्स यू 1 अपॉन लैम्बडा. रेसिप्रोकल लोगे तो लैम्बडा मिलेगा. दैट इज द वेवलेंथ ऑफ
radiation या spectral light when electron jumps from second orbit to first orbit. वापस समझाता हूँ. मानो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो Ni is equal to 2, Nf is equal to 1, R constant. Put all these values and calculate the wavelength. वो wavelength किसका मिलेगा? It is the wavelength of spectral line emitted due to transition of electron from second orbit to first orbit. ऐसे आपको कितने सारे Ni और Nf को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अवेलेबल है. ठीक है. अगर आपको Z इंट्रोड्यूस करना है तो ये e⁴ के साथ Z² यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. e⁴ के साथ आप Z² ले सकते हो. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, e² के साथ एक Z लेने का, तो ये Z² आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Here it is. So by using this formula, one can calculate wavelength and hence wave number of spectral line emitted due to transition of electron from outer orbit to inner orbit. Right? This formula is called Bohr's formula. It is also called Balmer's empirical formula, or it is the expression for wavelength या wave number. ये जो मैंने R का वैल्यू बोला था, ये हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे आगे जाके न्यूमेरिकल्स. ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.1, ये थोड़ा गलत है, 1.097 है यहाँ पे. आई रिपीट, 1.097 है यहाँ पे इंटू 10⁷ पर मीटर. मैं वापस रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 1.097 लेना है. तो ये वैल्यू 10⁷ पर मीटर. राइट. कैलकुलेट करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आएगा 911 एंगस्ट्रॉम. आई अगेन रिपीट यू, ये वैल्यू 1.097 है. अगेन रिपीट. तो ये चेंज कर लो आपके नोट्स में क्योंकि गलत गया होगा. तो यहाँ देखो Ni और Nf के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे मैंने NF1 लिया फिक्स, तो Ni 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं. अगर मैंने Nf को 1 लिया, मतलब ट्रांजिशन एट फर्स्ट ऑर्बिट कंसीडर किया, तो ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आई कैन कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी हो सकता है. तो साइंटिस्ट ने इसे ग्रुप बनाया. ग्रुप कैसे रहेगा देखो, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये एक ग्रुप हो गया. ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ये भी ग्रुप हो गया. ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ये भी ग्रुप हो गया. दिस ग्रुप्स आर गिवन अ नेम सीरीज. तो ऐसे टोटल 6 सीरीज आर अवेलेबल नाउअडेज. वो सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे. ये डायग्राम, ये पूरा डायग्राम एग्जाम में नहीं आता है, कोई भी 2 आता है. डायग्राम में देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसका क्वांटम नंबर है 1, ये क्वांटम नंबर 2, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट, ये छठा ऑर्बिट. सो ऑर्बिट कंटिन्यूज अप टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी. पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, -13.6. दूसरे ऑर्बिट में -13.6 अपॉन n² रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा. तीसरे ऑर्बिट के लिए 9 हो जाएगा, चौथे के लिए 16, पांचवे के लिए 25. दिस इज हाउ यू कैन कंटिन्यू. सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर इंफिनिटी टेंड्स टू 0. ओके. यहाँ देखो, दो ऑर्बिट में स्पेसिंग धीरे धीरे कम किया है. पहला और दूसरा ऑर्बिट में स्पेसिंग ज्यादा है, फिर ये स्पेसिंग कम है, फिर ये स्पेसिंग कम है. तो ड्रॉ करते सामने ध्यान दो कि आप स्पेसिंग कम कर रहे हो. एक कम है, एक कम. ये स्पेसिंग इंडिकेट क्या करता है, ये 2 ऑर्बिट में जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस क्वांटम नंबर अगर बढ़ेगा तो कम होता है. Because energy difference is inversely proportional to wavelength.
थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये -13.6 है, ये 3.4 होगा, सॉल्व करेंगे तो -3.4 होगा। तो यहाँ का एनर्जी डिफरेंस है 10.2, ये -3.4 है, ये 1.51 आएगा। तो -3.1 -3.4 और ये 1.51 एनर्जी डिफरेंस और कम होगा। ये -1.51 है, ये -0.85 हो जाएगा और कम हो गया। ये -0.85 है, ये -0.54 हो जाएगा और कम हो गया। ये -0.54, ये -0.45 हो जाएगा और कम हो गया। तो जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एनर्जी डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट ऑर्बिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसीलिए आपको ये स्पेसिंग धीरे 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 कम करना। अभी देखिए, ये सब ट्रांजिशंस कहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में, और कहाँ से है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू इंफिनिटी। तो इस सीरीज को मैं कैसे पढ़ेगा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट to first orbit gives you a series of spectral lines. That series is called as Lyman series. तो लाइमन सीरीज के लिए आउटर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर 2 से इंफिनिटी तक एक्सटेंड होता है और इनर ऑर्बिट है पहला। ये हो गया लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज कैसे पढ़ोगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ये बाल्मर सीरीज है। तो बाल्मर सीरीज के लिए Ni क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी, ये Ni आउटर ऑर्बिट, और Nf क्या है, ओनली 2। पाशन सीरीज कैसे पढ़ोगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ये पाशन सीरीज है। ब्रैकेट सीरीज कैसे पढ़ोगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। पॉइंट सीरीज कैसे पढ़ोगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। आगे और एक सीरीज आता है हम्पेरी, वो क्या रहेगा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू सिक्स्थ ऑर्बिट। तो लैंग्वेज कॉमन जा रहा है। सो दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू इनर फिक्स इनर ऑर्बिट। तो साइंटिस्ट ने ग्रुप्स को नाम दिएगा, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फर्ड एंड हम्पेरी। तो हर 2 सीरीज आपको एग्जाम में आता है। कोई डायग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी बोला, क्वांटम नंबर लिखो, ये एनर्जी वैल्यूज लिखो। एनर्जी वैल्यूज आपको याद नहीं रहेंगे तो पहला याद रखो, अगला डिवाइड बाय n स्क्वायर होता है, तो बाय 4, बाय 9, बाय 16, बाय 25 अप टू इंफिनिटी चला जाएगा। दो जो ऑर्बिट है धीरे धीरे ड्रॉ करते समय स्पेसिंग कम करते जाओ। मैंने स्पेसिंग क्यों कम किया, जस्टिफाई करके। फिर डिसिप्लिन क्या है, पहला ऑर्बिट लो, ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट दिखाओ। फिर दूसरा ऑर्बिट लो, ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू सेकंड दिखाओ, ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू थर्ड दिखाओ। ऐसे आप सीरीज ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में आप अलग अलग कलर या पेंसिल और पेन अल्टरनेट यूज कर सकते हो। ये सब सीरीज है, ये देखो, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड, 5 ही आपको सीरीज। सबका लैंग्वेज एक ही है, ये देखो, एक ही पढ़ता हूँ मैं, बाकी आप कर लोगे। लाइमन सीरीज कब मिलेगा, इट इज अ ग्रुप और सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड कब, when there is a transition of electron from different outer orbits to first orbit. तो यहाँ वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन लैम्बडा इज r, 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ns स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ nf क्या है, 1 लाइमन सीरीज के लिए, तो ni क्या रहेगा, 2 से आगे, सब शुरू कर दो।
So by this formula, you can find out wavelength of spectral lines present in Lyman series. अगर आप वो वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये सभी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बिलोंग करते हैं. दूसरा, बाल्मर सीरीज कैसे डिराइव करोगे? वही लैंग्वेज है. देखो, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू कहाँ पे? सेकंड ऑर्बिट. ये इटैलिक लेटर मैंने दिया, यही चेंज हो रहा है. सेकंड ऑर्बिट, ये वेव नंबर का फॉर्मूला है. बाल्मर ये सेकंड सीरीज है, तो ट्रांजिशन इज एट सेकंड, so ट्रांजिशन इज फ्रॉम थर्ड ऑनवर्ड. सब्स्टिट्यूट करो, ये 1/4. ये वेरिएबल है इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, तभी 3, 4, 5, 6 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ये सभी वेवलेंथ जब आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू चेंज करके, all these wavelengths belong to visible region of electromagnetic spectrum. अगला, Paschen series. It is the series of spectral lines obtained due to transition of electron from different outer orbit to third orbit. तो Paschen series के लिए ये वेव नंबर का फॉर्मूला, transition take place at third orbit, so transition must take place from fourth orbit onward. सब्स्टिट्यूट करो, ये तो वेरिएशन रहेगा 4, 5, 6 ऑनवर्ड. अगर आप Ni का वैल्यू पुटअप करते जाओगे तो जितने भी वेवलेंथ मिलेंगे, दोज ऑल वेवलेंथ बिलोंग टू नियर पोर्शन ऑफ इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये बहुत वाइड रीजन है इंफ्रारेड, तो शुरू के रीजन में ये सभी वेवलेंथ बिलोंग करते हैं. अगला है ब्रैकेट सीरीज. It is a series of spectral lines obtained due to transition of electron from different outer orbits. ये लैंग्वेज कॉमन है, टू फोर्थ ऑर्बिट. ये फॉर्मूला, यहाँ पे ट्रांजिशन इज एट फोर्थ, सो ट्रांजिशन इज फ्रॉम फिफ्थ ऑनवर्ड. ये फॉर्मूला है. ये सब वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो ऑल दिस वेवलेंथ आर प्रेजेंट इन अ मिडल इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टेबल आपको लास्ट ईयर था 11 में. टेबल देखने की जरूरत नहीं, खाली इतना ही प्रिपेयर करना. न्यूमेरिकल वैल्यूज भी देखने की जरूरत नहीं. अगला, फर्न्ड सीरीज. प्रोनाउंस करते समय P साइलेंट रखो. It is a series of spectral lines obtained due to transition of electron from different outer orbit to fifth orbit. And a transition take place at fifth, so transition take place from sixth onward. Yeah, it's very simple. सब जगह लैंग्वेज सेम है, खाली ट्रांजिशन एट ये बदल रहा है. लाइमन रहेगा तो ट्रांजिशन एट फर्स्ट, बाल्मर रहेगा तो ट्रांजिशन एट सेकंड, पाश्चन रहेगा तो ट्रांजिशन एट थर्ड, ब्रैकेट रहेगा तो ट्रांजिशन एट फोर्थ, एंड फर्न्ड रहेगा तो ट्रांजिशन एट फिफ्थ. ठीक है, ये आपको प्रिपेयर कर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सेम टॉपिक. थैंक यू.